تعلیم ایک ایسا سفر ہے جو صرف نمبرز اور امتحانات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنی سکون بھی ہے، خود اعتمادی بھی ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین گرامی، بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں امتحانات کو اکثر دباؤ اور خوف کی علامت بنا دیا جاتا ہے۔ اس میں پیرنٹس بھی انوالو ہیں اور اس میں خاص طور پہ ٹیچرز اور پھر ٹیوٹرز حضرات جو ہیں ان کو بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اب وہ نمبرز کی جو لینا اور نمبرز زیادہ آنا، پھر اس میں پوزیشنز، اس میں آپ کے گریڈز آ جاتے ہیں، بچوں میں اتنا ٹف اس کو بنا دیا جاتا ہے کہ بچے بیچارے جو ہیں پھر وہ رٹے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بچے اس قدر سٹریس لے لیتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کون سا سبجیکٹ، کون سا ٹاپک، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، پریکٹیکل لائف میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور بچوں کو اسی وجہ سے ہمارا جو نصاب ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے بچے رٹا بازی میں اس حد تک پڑ گئے ہیں اور اس میں بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ پیرنٹس، سوسائٹی اور ٹیچرز کی وجہ سے ہے، ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ہے کہ ہمارے بچے جب بھی ایگزامس ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز وہ اتنے سٹریس لیتے ہیں، اتنی ٹینشن ہوتی ہے، گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے کہ بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں جی، حالانکہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، پیپرز ہم بھی دیا کرتے تھے، ہماری مائیں جو ہیں ہم روٹین عام جیسے لائف ہوتی ہے ویسے ہی ہماری وہ روٹین ہوتی تھی، کوئی خاص چینج نہیں ہوتا تھا۔ اب جی یہ جو سٹریس فری اسیسمنٹ ہے، یعنی کہ دباؤ سے پاک جانچ کا تصور آج کی تعلیم میں یہ بے حد اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ یہ نہ صرف طلباء کو بہتر سیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ ان کی ذہنی جو اور تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو بھی بڑھاتا ہے، اجاگر کرتا ہے۔ تعلیمی نظام پہ بات کریں گے کہ ایسا سب کیوں ہے، ہمارے بچے جو ہیں ہم نے ان کو ایگزامس اور یہ سب چیزوں سے، پڑھائی سے اتنا زیادہ خوف زدہ کیوں کر دیا ہے، کیا ڈیفرنس ہے ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں اور باہر کے کنٹریز میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں کیا فرق ہے۔ اسی کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا جی، ماہر تعلیم ہے خانم انسا شہزادی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو اپنے مارننگ شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ انسا، روایتی امتحانی نظام کے مقابلے میں یہ جو متبادل اسیسمنٹ طریقے ہیں، جیسے پروجیکٹس ہوتے ہیں، پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اسیسمنٹس بھی ہوتی تھیں، یہ کس حد تک زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بہت اہم آج کا یہ ٹاپک ہے، کیونکہ ابھی پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان نے بھی اس میں ایک سٹیپ جو ہے وہ لیا ہے کہ ہم وہ ایک سالانہ یا 6 ماہی جو امتحانات کا دباؤ بچوں پر ڈالتے تھے، اب اس کو کم کر کے سمارٹ اسیسمنٹ کی طرف لے کے آئیں۔ اور یہ جانچنے کا جو طریقہ ہے یہ بچے کا جو اس کا ذہنی دباؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہے، کیونکہ کوئی بھی انسانی دماغ جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتا، اور ایک بہت لانگ ٹرم کے لیے۔ تو اس لانگ ٹرم ڈیٹا کو سٹور کرنے کے بعد جب اس سے میموری ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ نہ کر پائے جس طرح سے اس نے یاد کیا تھا۔ اب اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو جو اس نے ڈیٹا سیو کیا تھا اس کو پریکٹیکل لائف میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اس کو جانچنے کے لیے ہمیں سمارٹ اسیسمنٹ اور سٹریس فری اسیسمنٹ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر ایک جو ہے پہلا سٹیپ لے لیا ہے کہ ہمارا پلے کلاس سے لے کر جو ہماری دوسری کلاس ہے وہاں تک کے اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہوگا کہ وہ 3 ماہ کے بعد، 6 ماہ کے بعد، 9 ماہ کے بعد یا 12 ماہ کے بعد کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ دے گا یا کوئی ان کا پیپر ہوگا، بلکہ ان کی ڈیلی بیسس پہ سمارٹ اسیسمنٹ ہوں گی جو سٹریس فری ہوں گی، جس میں چیک لسٹ ایڈ کی گئی ہیں۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان فائنل ایگزامز کی آپ کہہ رہی ہیں، وہ جو مڈ ٹرمز ہوتے ہیں، اینڈ ٹرمز ہوتے ہیں، بالکل یونٹ کلوزنگ، اسیسمنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بچے بیچارے نا ہر وقت پیپرز کی تیاری اور ڈائری پہ نوٹیفیکیشن بھیج دیا جاتا ہے یا موبائل فون پہ واٹس ایپ آ جاتا ہے گروپ کے اندر اسکول کی طرف سے کہ بھائی پیپر منی بھیج دیں آپ، اتنی پیپر منی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر مہینے بعد یہ نوٹس ضرور آتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے ایک تو پیرنٹس کو بھی دباؤ میں رکھتی ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے یہ پے کرنا ہے، یہ پے کرنا ہے، بالکل یہ پے کرنا ہے، یہ پے کرنا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے ڈیلی بیسس پہ جس کو ہم کیٹس کہتے ہیں، کلاس روم اسیسمنٹ ٹیکنیکس، ہم لوگوں نے چھوٹا سا پورشن پڑھایا، اب اس پورشن کو رٹا نہیں لگوانا، نہ ہم سے لو آرڈر تھنکنگ کو ہم نے انہینس کرنا ہے، جس میں ہم میموری اور انڈرسٹینڈنگ کو لے کے آتے ہیں۔ اب میموری اور انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم لے کے آتے ہیں کیا وہ اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے بچے اردو پڑھتے ہیں، اس کے گرامر کو رٹا مارتے ہیں، ریئل لائف میں کہاں استعمال ہونا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اور زبان میں کہاں پر ان کا استعمال کرنا ہے، زبان سازی میں کیسے استعمال کرنا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے بچے اردو اور انگلش اور ہندی ان کی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اردو جو ہے وہ ان کی بہت ویک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے کارٹونز دیکھ رہے ہیں،
हमारे डेली बेसिस पे बच्चे हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, वो उन्होंने मुझे देखनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी वजह से क्योंकि जो चीज़ सुनी जाती है वही बोली जाती है और जो बोली जाती है वही पढ़ी जाती है और वही लिखी जाती है। जब आप बच्चे को, जैसे अभी मैं एक टेस्ट चेक कर रही थी तो बच्चों ने जिस तरह से हम रोमन में लिखते हैं ना, उस तरह से रोमन में कुछ लिखा हुआ था और मैं सोच रही थी कि अब इसका क्या जवाब होगा और किस तरह से लिखा जाएगा। और जब यू लिखने की टाइम आया तो उसने यू के स्पेल यू जस्ट लिखा हुआ था और फिर मैं उसको देख रही थी कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है। अब ये चीज़ें हैं कि हम लोगों ने डेली बेसिस पे एक पैराग्राफ पढ़ाया। अच्छा, अब उसमें उस बच्चे ने क्या क्या सीखा है, जैसा कि उसकी लिसनिंग स्किल डेवलप हुई है तो हम लिसनिंग स्किल के बारे में उसको कुछ अल्फाज बोल के बताते हैं कि क्या वो उसको सुन सकता है अच्छे तरीके से और उसको पहचान सकता है। छोटी सी चेक लिस्ट ऐड की गई है, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स ऐड की गई हैं। ऑब्जर्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, इस टीचिंग मेथड में आप बच्चों को कोई टास्क देते हैं, ग्रुप बेस पे काम करवाते हैं और आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या वो टीम वर्क में अच्छे तरीके से काम कर सकता है, क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट कर सकता है, क्या वो अपनी तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक्टिव होकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करके अब एक कोलैबोरेशन के साथ एक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के काबिल है। टीम वर्क उसको आता है, वो एज अ लीडर काम कर सकता है, वो एज अ मैनेजर काम कर सकता है। तो ये स्किल्स डेवलप करनी है, ना कि हम लोगों ने बच्चे को एक जो हम लोगों ने कुबरा का गाँव एक कहानी है उसको पूरा याद करवाना, फिर उसमें लो ऑर्डर थिंकिंग और हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस दे के बच्चे का बस पेपर का टेस्ट लेना, बल्कि हम लोगों ने याद करवाना है कि बच्चे को पता चले कि सोशल एंड इमोशनल स्किल्स क्या होती हैं। अगर कुबरा का गांव है तो कुबरा के गांव में लोग कैसे रहते हैं, उसमें लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में कैसे शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ वो मिलजुल कर कैसे रहते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ कैसे समझा जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम लोगों ने इन असेसमेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए स्कूल्स में और क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं। और छोटी छोटी असेसमेंट रखी जाती हैं जिसमें यूनिट क्लोजिंग होती हैं, कॉमन असेसमेंट्स होती हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है वो असेसमेंट्स हैं, जिसमें चेकलिस्ट बेस्ड असेसमेंट्स हैं जिसको हम कैर्स का नाम देते हैं, फिर CCA कहते हैं यानी कि कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट टास्क हैं, जिसके ज़रिए हम क्लास में ये एक्टिविटीज़ अच्छा, ये आप कह रही हैं कि प्ले ग्रुप से लेके 2 क्लास तक ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होगा? ये गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये इस साल हो रहा है। लेकिन लास्ट ईयर मैंने जो किताबें लिखी अपनी प्ले, नर्सरी और प्रेप क्लास की, मैंने उन्हीं में ही चेकलिस्ट को ऐड कर दिया था ताकि हम उस रवायती तरीक़ेकार से निकल कर हम उन बच्चों को जो कि बेचारे भी पेंसिल पकड़ने के भी काबिल नहीं, हम उनको कह रहे हैं कि लेटर्स लिख के दिखाओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपकी बात हुई है इस सिलसिले में? जी हमारी गवर्नमेंट दिया कि इसी साल इसको हम ऐड करें। अभी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया है। अच्छा। हो सकता है वो इस साल इसको इम्प्लीमेंट करें, क्लास में इसको इम्प्लीमेंट करें, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर में हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जी हो रहा है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने इसको बिल्कुल हम लोगों ने इसको किया है और हम लोग इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस भी साथ साथ चल रही हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग्स भी इसके ऊपर हो रही हैं कि हम लोगों ने कैर्स को, कॉमन असेसमेंट टास्क को किस तरह से क्लास में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये असातिज़ा को स्ट्रेस फ्री असेसमेंट अपनाने के लिए किन तरबियती इक़दामात की ज़रूरत? बच्चों पे तो हम बड़ा फोकस करते हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल से बच्चों की लर्निंग से ज़्यादा ये जो टीचर्स हैं और ख़ासतौर पे प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो सूरत हाल है उनकी ज़्यादा उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं इनको अक्सर जब टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही होती है ना तो मैं उनको कहती हूँ कि हम साल के बाद जब जांच का एक इम्तिहान करते हैं तो उसको हम पोस्टमार्टम की तरह लेते हैं कि वाक़या होने के बाद हम पोस्टमार्टम करें। लेकिन जो हम क्लासरूम के शॉर्ट असेसमेंट लेके आते हैं या हम लोग जो है ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट लेके आते हैं, वो हमारी चेकअप है। वो सिर्फ बच्चे का चेकअप नहीं है कि बच्चे ने कितना लर्न किया, वो टीचर का भी है कि उसने कौन से टीचिंग मैथडोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए बच्चे को जो सिखाया था, क्या उससे बच्चा सीख रहा है। कुछ बच्चे सुन के सीखते हैं, कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, कुछ बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने के बाद सीखते हैं, कुछ बच्चों को कुछ ऑब्जेक्ट आप उनको हाथ में पकड़ा दें उसको टच करके सीखते हैं। तो हम हर एक बच्चे को एक ही लेक्चर मेथड के साथ नहीं पढ़ा सकते, हम एक ही वीडियो लेक्चर के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते। हम एक ही बच्चे हर पूरी क्लास के लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन करें, लेकिन उसमें हम VAKT टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल, ऑडियो, कैनेस्थेटिक और टच के साथ, ताकि वो बच्चों के साथ मिलकर जो बच्चा जिस लर्निंग मूड में सीखता है वो उसको वहाँ से पिक करे और हमारे और लर्निंग ऑब्जेक्ट जो है उनको इतनी मेहनत करेंगे बच्चों पे। हमारे टीचर्स को तो बड़ा वो फील होता है, सर में दर्द होता है और टाइम देखती हैं कि भाई क्या करें। लेकिन जब हम टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, एक होती है टीचर बाय चांस कि बस जी कोई और काम नहीं मिल रहा था तो स्कूल में टीचिंग कर ली, एक होती है टीचर बाय चॉइस। जो टीचर
सोच के बनते हैं कि मैंने टीचिंग करनी है। जैसे हमारा बचपन में सबसे पहला ड्रीम होता है कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना है। तो वो जो बचपन में जब खेलते भी हैं, है ना, तो हम टीचर खेलते हैं, है ना, और सबसे पहली खेल हमारी यही होती है। तो वो जो टीचर्स हैं वो ज़रूर मेहनत करने चाहती हैं। मेरी अभी पूरे पाकिस्तान में मैं ट्रेनिंग करवाती हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हमारी चल रही होती हैं। हमारी महीने में 3 ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, और इसके साथ जो है हमारी फ़िज़िकल ट्रेनिंग पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हम KPK से लेकर जनूबी पंजाब और पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में जाकर टीचर्स के लिए क्लस्टर बेस्ड ट्रेनिंग्स जो हैं उनका अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो बिहाफ पे करती हैं सब कुछ। ये हमारी कंपनी जो है, हम लोग जो है बुक पब्लिशर्स कंपनी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी किताबों में इनोवेशन लेके आ रही हैं, और हम इसके ज़रिए जो है पूरे पाकिस्तान में जदीद तालीमी निज़ाम को, जो फ्यूचर लर्निंग के नाम से हम इसको लेके जा रहे हैं, और हमारी किताबें बोलती किताबों के नाम से हैं। और 2017 में हमने पहली मर्तबा सीडीज़ में टीचर्स के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की थी, और दुनिया में और पाकिस्तान में ये वाहिद पहली ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी ने टीचर्स की ट्रेनिंग को बहुत ही ऐसा समझा कि बहुत सीरियस लिया कि टीचर्स को ये चैप्टर पढ़ाने के लिए, और अभी हमारी किताबों के साथ QR कोड लगे होते हैं, और हम उन टीचर्स उन QR कोड को स्कैन करती हैं, और उसके बाद वहाँ पर 3 तरह की वीडियोज़ होती हैं। एक जो आप डेमो वीडियोज़ हैं जिसमें बच्चे किस तरह से पढ़ सकते हैं खुद से, अगर जैसे कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं और कभी फिजिकल क्लासेस होती है, अचानक छुट्टियां हो जाती हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हमारी दूसरी जो वीडियो होती है वो टीचर्स की इंस्ट्रक्शन के लिए है कि अगर टीचर ने क्लास में पढ़ाना है तो अपना लेसन प्लान इस चैप्टर के साथ, इस सबक के साथ किस तरह से अलाइन करना है, और कौन कौन से टीचिंग मैथडोलॉजीज को अडॉप्ट करके वो क्लास में इसको पढ़ा सकती हैं। तीसरी बहुत ज़रूरी, जैसे आपने शुरू में बात की थी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हमारा ट्यूटर जो है अलग से हमारा बर्डन बन रहा है, हमारे स्कूल्स की तरफ से अलग से आ रहा है। तो पेरेंट्स के लिए जिस दिन पेपर होता है ना नेक्स्ट डे, तो बच्चे की जान नहीं छोड़ते, वो आप 6 बजे कॉल करो तो अभी छुट्टी नहीं हुई है, 7 बजे कॉल करो तो अभी छुट्टी नहीं हुई है। बंदा पूछे आप सारा साल क्या करते रहते हैं? हाँ, पेपर से एक दिन पहले बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 9 बजे तक बिठाया हुआ है बच्चे को, सबको छुट्टी हो गई, उसको छुट्टी नहीं, उसकी अभी पेपर की तैयारी नहीं हुई। और बिल्कुल हम लोगों ने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व थोड़ा करके अगर सारे बच्चे पे टीचर, पेरेंट्स, ट्यूटर, हम बिल्कुल ये ट्रायंगल है ना, तो हम लोगों ने पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग टिप्स रखी हैं कि अगर आपका बच्चा घर में है और अगर आप उसको बिजी रखना चाहते हैं एजुकेशन में, अगर उसको पढ़ाई के साथ आप भी साथ में लिंक करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखें, QR कोड स्कैन करें, और जिस तरह से टीचर ने क्लास में पढ़ाया है, जो टीचिंग मेथड टीचर ने क्लास में अडॉप्ट किए हैं, आप उन्हीं टीचिंग मेथड को अपने घर में अडॉप्ट करते हुए आप बच्चे को घर में खुद पढ़ा सकते हैं। और थोड़ा सा वक्त लगता है, वो 7 से 8 मिनट की एक वीडियो होती है, उस वीडियो को देखें और आप अपने बच्चे को घर में एक एक लेटर के साथ, एक एक नंबर के साथ, एक एक हरूफ तहज्जी के साथ 3-3 वीडियोज़ हमारी, ताकि हम आसान तरीके से उन जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे सिंगल नेशन करिकुलम ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि ये कॉम्पिटेंसीज बच्चे की डेवलप होनी चाहिए, वो किस तरह से होंगी, वो हमारे जब ट्रायंगल साथ में होगा, जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, मैनेजमेंट है, वो सब आपस में मिलेंगे तो हम उस जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, अल्लाह करे आप जो बता रही हैं वाकई ऐसा हो। बिल्कुल ऐसा है। प्राइवेट स्कूल जो हैं वहाँ पे मैंने तो अक्सर देखा है, कभी बच्चे को अगर ड्रॉप करना हो स्कूल में तो बच्चों को क्लासरूम्स के बाहर खड़ा किया होता है, प्रिंसिपल रूम के बाहर ना ऐसे कतारें लगी हुई होती हैं। तो एक दफ़ा मैंने पूछ लिया ना एक बच्चे से, मैंने कहा बेटा आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ना क्लास चल रही है, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चों को प्रिंसिपल रूम के बाहर यूँ लाइनों में खड़ा, हमने फ़ीस जमा नहीं करवाई। ओह माय गॉड। मैंने कहा कि मतलब ये हालात हैं हमारे तालीमी इदारों के, फाइनेंशली हर बंदा सफ़र कर रहा है, ठीक है, जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो इस वक्त सूरत हाल है, तो अगर पेरेंट्स बेचारे हो जाता है समटाइम्स आप फीस नहीं बच्चे की दे पाए, डजंट मीन कि आप कितना इंसल्टिंग है उस बच्चे के लिए, और उस बच्चे का उस टाइम पे, उसके उस टाइम पे, यानी जिस तरह की स्ट्रेस में बच्चे के जो है वो हार्मोन एक निकलता है जिसको कोर्टिसोल कहते हैं, अब वो स्ट्रेस में आता है, और जब बच्चा इस स्ट्रेस में आता है तो उसका क्रिएटिव माइंड ब्लॉक हो जाता है, और क्रिएटिव माइंड जब ब्लॉक होता है तो वो किसी भी एक्टिविटी में उस तरह से एक्टिव होकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो जो आपके स्कूल के लर्निंग ऑब्जेक्ट आपने सेट किए हैं, कभी भी इस सिचुएशन में बच्चा उसको मीट नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकता। सो आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन, स्कूल ये तालीमी इदारों की हमारे हाल है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और यकीन करो मेरा दिल, कोई एक बच्चा होता, 2 होते, 3 होते तो शायद मैं उनकी फीस दे देती, लेकिन वो चूंकि लाइनें लगी हुई थी, हम
ادھر بیٹھ کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا پروفیشن ایسا ہے, ہم نے ظاہر ہے نیوز یہ سب چیزیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ لوگ کتنے مجبور ہیں, مہنگائی کی کیا صورتحال ہے, آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حالات ہوں گے. تو اسکولوں کو خدا رہا, پیرنٹس کو بلا لیں, ان کو ان کے ساتھ میٹنگ کریں. پیرنٹس کو بلانے کا بھی طریقہ کار تھوڑا ڈفرنٹ ہے. ہمارے پرنسپل, ٹیچرز اور اسکول کی جو مینجمنٹ ہے اس کو ان چیزوں کے لیے کوئی نہ کوئی لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. الگ الگ ملے, ٹھیک ہے, کوئی لاہے عمل اس طرح کا اختیار کیا جائے کہ ان کی بھی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ رہے. اور ایک روم ہے, اس میں سارے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پرائیویسی نہیں ہے, آپ سب بچوں کی پرفارمنس ادھر ڈسکس کر رہے ہیں, سب کے رپورٹ کارڈز پکڑے ہوئے ہیں. جب تک ہم لوگ ڈاکومنٹ کچھ بھی اپنی پالیسی نہیں بناتے ہیں نا اسکول کی, پھر اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں, پھر وہ پیرنٹس بھی ڈسٹرب رہیں گے, آپ بھی ڈسٹرب رہیں گے. فیسیں آپ بچے کی ابھی کلاس جو ہے پروموٹ ہوتی نہیں ہے, آپ نوٹیفیکیشن بھیج دیتے ہیں کہ اتنی فیس بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں فیس جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ آپ ضروری ہے, لیکن ہاں فیسیلیٹیٹ بھی کریں اور اس کے لیے پالیسی بنائیں. آپ فیسیلیٹیٹ نہ کریں, میں کہتی ہوں آپ بچوں, لیکن میں نے وہ جو دیکھا ہے نا, میں یقین کرے, میں بالکل ایک پینفل ہے. ہاں, میں جہاں جہاں مطلب میرا ایون نیچے سٹاف بھی ہے, آفس میں بھی, گھر میں بھی, کہیں بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں خدا کے لیے سب سے پہلے بچوں کی فیسیں دیا کرو, اس کے بعد گھر میں گروسری کرنے سے پہلے بچوں کی فیس دے دیا کریں, کیونکہ اسکولوں میں بچوں کے ساتھ جو کرتے ہیں نا وہ پھر کہ بچے کی فیس اگر لیٹ ہو گئی, آپ شاید آپ کو نہیں پتا, آپ اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں, لیکن بچے کو فیل کرواتے ہیں جان بوجھ کے, کلاس میں اس کی ایکٹیویٹیز میں اس کو اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کروایا جاتا, اس کو جو ہے اس طرح سے کلاس میں کسی بھی ایکٹیویٹی میں اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی, اور اس کے بعد جو ہے اس بچے کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو نالائق ہے, یہ تو کام کوئی کر ہی نہیں سکتا, جبکہ اس کے پیچھے آپ کا اگر ریزن صرف فیس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بھی ایڈ کریں. بالکل انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو ہم جو ہے اسکول مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتے ہیں انشاءاللہ, کہ کس طرح سے ہم پالیسی میکنگ کی طرف جائیں, کہ اسکول کے اگر کچھ رولز بنائے جائے تو اس میں فیس کی پالیسی بھی بنائی جائے, اس کو انسٹالمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے جو ہے وہ جو ڈیزرونگ ہے ان کے لیے ہاف فیس کے پیکیجز بھی لائے جا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. اچھا جی, یہ والدین اور تعلیمی ادارے, میرا سوال بھی یہی ہے, کس طرح سے مل کر ایسا ایک ماحول ہم اپنے بچوں کے لیے تشکیل دے سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر. ہم سب بچوں کے یہاں پہ ہم انڈیویجولی بات نہیں کر رہے ہیں, بالکل, جب ہم قوم کی, بلکہ میں کہتی ہوں صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں, بچے تو بچے ہوتے ہیں, چاہے ان کا سرحد کے اس پار ہیں اس پار ہیں, ہم سب کے. تو کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایسا کوئی بہترین ماحول تشکیل دے سکیں کہ آگے جا کر کے ہمارے بچے جو ہیں وہ نام روشن کریں اپنا. بالکل, دیکھیں جب تک ہم پڑھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں کہ ضرورت کیا ہے بچے کی, بیسک نیڈز کیا ہیں. ہم لوگوں نے اسکولس میں خاص طور پر اسکولس نے ایک جو ہے وہ ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ میں نے بچے کو یہ پڑھانا ہے. پیرنٹس نے بچے کے لیے سیٹ کیا ہے کہ میں نے اس کو تربیت دینی ہے, اس کو یہ سکھانا ہے, یہ سکھانا ہے, یہ سکھانا ہے. پیرنٹس اور ٹیچرز آپس میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ کون سی ایکٹیویٹی ہماری اس سبجیکٹ کے ساتھ اور اس کام کے ساتھ لنک کر رہی ہے. دونوں الگ الگ طریقے سے اپنی دوڑ میں ایسے لگے ہوئے, اور مائیں کہہ رہی ہیں بھی میں نے تو اپنا سب کچھ ہی اجاڑ دیا, میں نے میک اپ کرنا چھوڑ دیا, میں نے نئے کپڑے پہننا چھوڑ دیے, میں نے تم لوگوں کے لیے اپنی زندگیاں جو ہے وہ اجاڑ دی ہیں. لیکن ادھر ٹیچر بھی کہہ رہی ہیں ہم صبح سے لے کے شام تک آپ کے ساتھ کھپ رہے ہیں, رزلٹ نہیں مل رہا. تو ہمیں اب دونوں کو, ٹیچر کو اور پیرنٹس کو, آپس میں ایک جگہ پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سی ایکٹیویٹیز کروا کر اپنے جو لرننگ آبجیکٹ ہے ان کو میٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. پیرنٹس بھی چاہ رہا ہے کہ بچہ کامیاب ہو, ٹیچر بھی چاہ رہا ہے کہ بچہ کامیاب ہو. اب کامیابی کی ڈیفینیشن دونوں کو پتہ نہیں ہے. کامیابی اچھی جاب ہے, روپیہ پیسہ ہے, یا پھر کامیابی بچے کی اصلاح ہے, بچے کی معاشرتی ضروریات ہیں, سماجی ضروریات ہیں, یا پھر بچے کا کریکٹر ہے, بچے کی لائف سکلز ہیں, بچے کی پرابلم سالونگ سکل ہے, یا 21 سینچری کی جو سکلز ہیں, کیا وہ بچے کی, آپ کامیابی کی کیا ڈیفینیشن. دونوں کو پہلے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پر پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اسکول پرنسپلز کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنے اسکولز میں اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں جو آپ کی بیسک نیڈ ہے, کیونکہ جو ایجوکیٹرز ہیں جو اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بچے کی نیڈ کیا کیا ہوتی ہے. ہمارے سارے پیرنٹس اس طرح سے ایجوکیٹ نہیں ہیں, تو ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے, اور ٹیچرز نے مل کے بچوں کو کیوں گریڈ اور بچوں کو نمبرز کی دوڑ میں لگا دیا ہے, یہ سب کیا چل رہا ہے, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग लाहौर। और हमारे साथ हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जी, ख़ानम अंसा शहज़ादी, माहिर तालीम हैं आप। हम तालीमी निज़ाम पर बात कर रहे हैं और इन्होंने हमें बताया है कि प्ले ग्रुप से लेकर के जो 2 क्लास है, प्राइवेट बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, एक रूल बनाया गया है और वो ये है कि बच्चों पे वो जो असेसमेंट टेस्ट होते हैं, वो जो मिड टर्म्स होते हैं, फाइनल टर्म्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को मतलब हर वक्त जो पेपर्स में हम एंगेज रखते हैं, अब वो ऐसा नहीं होगा। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर भी उनको कहा गया है कि जल्द ही हो सकता है इसी साल इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ की हो जाए और बड़ी अच्छी ये एक डेवलपमेंट है। बहरहाल तालीमी निज़ाम पे हम बात कर रहे हैं तो ख़ानम, इसमें ये भी है, आपको पता है कि अब समर वेकेशन आने वाली हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, छुट्टियां दे दी जाती हैं। अब तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन चलो फ्राइडे की छुट्टी जो है वो ख़त्म कह रहे हैं हम कर देंगे। इसमें ये है कि बच्चों को इतना ज़्यादा सिलेबस दे दिया जाता है, इतना काम दे दिया जाता है और सब लिखने वाला है। अब वो बच्चे बेचारे समर वेकेशंस घर पे उन्होंने जो गुजारनी है वो सिर्फ लिखते रहते हैं, ठीक है, उनकी और कोई वो एक्टिविटी नहीं है और कोई उनकी लर्निंग नहीं है, वो लिखना 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 और इसी तरह चलता रहता है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, जो समर ब्रेक होती है, या आज से अगर कुछ साल पहले की बात, हमारे ज़माने में भी था, लेकिन हम लोग पहले 15 दिन में हम हमारा काम कंप्लीट कर लेते थे, फिर नानों के घर जाना है। हमें तो ये कहा जाता था, हाँ, 15 दिन में ये रजिस्टर भर 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 और हमें तो ये कहा जाता था कि कंप्लीट करोगे तो कहीं जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। लेकिन क्या है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से छुट्टियों का सिलसिला है, तो ये ब्रेक वगैरह तो बिल्कुल नॉर्मल सी लगने लग जाती हैं बच्चों को। ये तो कोई इतना बड़ा लगता ही नहीं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, छुट्टियां आने वाली हैं, तो हम लोगों ने तो बहुत सारा प्लान किया होता था। बिल्कुल, तो वहाँ तब तो छुट्टियां होती ही नहीं थी ना। मैंने कहा हम लोगों ने स्कूल छोड़ा तो छुट्टियां शुरू हो गई। हम लोग जब स्कूल जाते थे तो छुट्टियां होते थे, तो वो भी हमें एप्लीकेशन रिटर्न लिख के फिर अब्बा से या अम्मी से सिग्नेचर करवा के बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं बहुत ज़्यादा। इसका जो पहला सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों ने QR कोड के साथ अपनी बुक्स रखी हैं, ताकि बच्चा चाहे वो फिजिकल क्लासरूम में हो या क्लासरूम के बाहर हो, घर में बैठा हो, वो अपने स्टडीज़ को वैसे ही रखेगा। लेकिन यहाँ पे होमवर्क की बात आती है। सो होमवर्क जब दिया जाता है वो सिर्फ बच्चे को, क्योंकि हमारे घर का माहौल और स्कूल का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब उसको आपस में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कुछ टास्क देना ज़रूरी है बच्चे के लिए, ताकि वो उसके साथ जुड़ा रहे। अब उसमें सारा ही लिखने का काम दे देना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और सारा ही एक्टिविटी बेस दे देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि बच्चा उन्हीं चीज़ों में लगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पेरेंट्स के ऊपर पहले ही बहुत सारे बर्डन्स हैं, और फिर उसके रिसोर्स मटीरियल जो है वो लेके आना और उसके मुताबिक बच्चों को एक्टिविटी करवाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम लोगों ने क्या किया है, जो अपना समर पैक तैयार किया है, उस समर पैक में हम लोगों ने बच्चे को रखा है डिसिप्लिन में। हमारी छुट्टियां आती हैं तो बच्चे हो जाते हैं ऐसे कि लेट जागेंगे, लेट सोएंगे, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और अपनी मर्ज़ी से सब कुछ होगा, और वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी में उसका हिस्सा बन जाते हैं कि जब स्कूल रीओपन होते हैं तो उसमें भी वो नज़र आने लगता है। अब हमने क्या किया है कि जो हमारी समर ब्रेक होगी, 2 माह की समर ब्रेक है, हमने इसको पर डे की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन किया है। उसका टाइम टेबल रखा है, जिसमें मदर्स का भी टाइम रखा है कि मदर्स ने किस तरह से बच्चे के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। पूरे वीकली प्लान्स रखे हैं कि डे 1 में बच्चा कौन कौन से सब्जेक्ट का कौन सा काम करेगा, रिटर्न में कितना काम होगा, प्रैक्टिकल यानी EPLs की एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, जिसमें उसकी होंगी एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ की, जिसमें उसकी लाइफ स्किल्स आ जाती हैं। जैसे अगर हमने साइंस स्ट्रीम की अगर बात की जाए, तो साइंस की बात की जाए तो हमारा किचन सबसे बड़ी साइंस लेबॉर्ट्री बन सकता है। इसके बाद इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथ की हम बात करते हैं तो हमारी किताब जो है उसमें हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट रखे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं, ताकि जो थ्योरी या जो फार्मूला बच्चा मैथ का पढ़ रहा है उसको रियल लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो जाए। इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं। तो जो समर पैक है या समर एक्टिविटीज़ हैं, उसको सिर्फ ये कह देना कि बच्चा लिखने वाला काम करेगा या सिर्फ एक्टिविटीज़ करेगा, ये हमने उसको ब्लेंड किया है और हम लोगों ने ऐसा एक समर पैक डिज़ाइन किया है जिसमें बच्चे का टाइम टेबल यानी डिसिप्लिन भी उसका मेंटेन रहेगा, उसकी हेल्थ जो है उसको रखा है, ताकि वो जो है वो मॉर्निंग में जब जागे टाइम पे जागे, फ्रेश हो, नहाए धोए, नाश्ता करे, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करे। उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, जिस तरह से वो क्लास में काम करता है उसी तरह से वो घर में काम करेगा, और थोड़े टाइम के लिए यानी 2 या 3 घंटे का उसको टास्क दिया गया जो स्कूल का करेगा। बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो उसकी घर की हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ मिलके जो करेगा, वो भी उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेंगी, जो कि उसकी सोशल एंड इमोशनल स्किल्स के लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह का एक जो है वो ब्लेंड करके हमने एक बहुत ही अच्छा समर पैक
جو ہے وہ ڈیزائن کیا، مارکیٹ میں آ چکا ہوا ہے، اور یہ ایسا سمر پیک ہے کہ آپ اگر جو ہے وہ اپنی کتاب کے ساتھ اس کو لے کے چلیں، اپنی ایج اینڈ گریڈ کے ساتھ، تو وہ آپ اپنی کلاس کے بچے کے لیے بہت اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی ماہر تعلیم خانم انسا شہزادی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے ٹائم کے لیے اتنی اچھی اور مفید باتیں آپ نے کی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے پرنسپل، اسکول، ٹیچرز، پیرنٹس سب ہم سیکھیں گے، اور سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔